ہوا ہے ڈوڈا کا ایک ہونہار طالب علم ہوشیارپور پنجاب میں مشکوک حالات میں جس کی موت ہوئی ہے. یہ قصبہ ڈوڈا کا 5واں ایسا جوان ہے اور پورا ڈوڈا خطے کا یہ شاید درجن بھر لوگ ابھی تک ایسے ہی حالات میں بیرونی ریاست میں جو ہے ان کی موت ہوئی ہے. یہ لگ بھگ ڈوڈا میں 5واں واقعہ ہے. میں اتنا اپیل کرتا ہوں اسٹیٹ گورنمنٹ سے کہ جو ایشو ہے اس کو پنجاب گورنمنٹ سے اٹھائے اور آگے جو ہمارے بچے باہر پڑھتے ہیں ان کو کوئی ان پہ ان کی زندگیاں بھی جو ہے وہ اس طرح ضائع نہ ہوں. جموں و کشمیر گورنمنٹ سے اپیل کرتا ہوں کہ اس بارے میں کم از کم تحقیقات کرائیں تاکہ آئندہ یہ حادثہ نہ ہو. سنبل بانڈی پورہ میں جموں کشمیر شیعہ ایسوسی ایشن کے اہتمام سے شاہت الپورہ سے لے کر شادی پورہ امام باڑہ تک ایک میلاد جلوس نکالا گیا. جلوس میں بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی. عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقاریب کے تحت سوپور کے واسطہ کین نوپورہ میں ایک جلوس نکالا گیا. لوگوں کی کثیر تعداد نے جلوس میں شرکت کی. ای ٹی وی اردو کشمیر میں آج بس اتنا ہی. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دیکھیے خاص بات ابو ہریرہ کے ساتھ. آداب. دکن کی ہر چھوٹی بڑی سرگرمی پر ہماری نظر، لیکن آپ تک پہنچاتے ہیں صرف وہ خبر جو کرے آپ کو بیدار. سیاست کے گلیاروں سے روزمرہ کی زندگی دکن کے گوشے گوشے سے آپ تک خبریں پہنچاتا دکن نامہ، روزانہ شام 6:30 بجے. ایک مٹھی بھر جینے کی آرزو، تبدیلی کی چٹکی بھر جستجو، روزمرہ کے مسائل کی ڈھیر ساری بے قراریاں، خالی پتیلے میں پکتی گھر بھر کی بھوک، تاریکیوں سے لڑ اکٹھا کی ہوئی چٹکی بھر دھوپ. جمہوریت کا عظیم تیوہار پھر سے آیا ہے. کیا ہو آپ کا فیصلہ، بتائیں گے ملک کے بھروسے مند صحافی تردیپ رمن. ووٹ کرے گا انڈیا. بھاگتی دوڑتی زندگی میں خبروں کی کوئی کمی نہیں، لیکن ہم آپ تک پہنچاتے ہیں صرف وہ خبریں جس میں نہ ہے کوئی جانبداری نہ ہی سنسنی. خبر جو ہر دم آپ کو رکھے باخبر. دیکھیے دن بھر کی خبروں کا آئینہ 9 PM خبر نامہ. ای ٹی وی اردو پر اگلا پروگرام. ناظرین آداب، ٹی وی اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے. خاص بات کے ساتھ میں ہوں ابو ہریرہ. سب سے پہلے نظر سرخیوں پر. گجرات کی حج کمیٹی اتری مودی کی حمایت میں. صوفی ایم کے چشتی نے بنگلورو میں کیا مودی کا گنگان. انڈین نیشنل لیگ لوک سبھا کی تمام سیٹوں پر کرے گی مقابلہ. دہلی کی پریس کانفرنس میں لیگ کا اعلان. مظفر نگر کے فسادات نے گنے کی مٹھاس کو بھی کیا کم. مل مالکان اور گنا کسان پریشان. اور بھارت رتن خان عبدالغفار خان کی کل منائی گئی برسی. گاندھی کے پیروکار بھی بھلا بیٹھے سرحدی گاندھی کو.
बीजेपी की वजारत उज़्मा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के हक में मुसलमानों की जहनसाजी की कोशिश तेज हो गई है। इस कोशिश के तहत बेंगलुरु में मोदी और मुसलमान के उन्वान पर सेमिनार का इनेकाद अमल में आया। सेमिनार में गुजरात हज कमेटी के चेयरमैन सूफी एम.के. चिश्ती ने दावा किया कि मुल्क की तमाम रियासतों में सबसे ज्यादा मुसलमानों की तालीमी और माशी तरक्की गुजरात में हो रही है। गुजरात के वजीर आला नरेंद्र मोदी के हामियों की तंजीम नमो ब्रिगेड ने बेंगलुरु में मोदी और मुसलमान के मौजू पर एक रोजा सेमिनार का इनेकाद किया। सेमिनार में गुजरात रियासती हज कमेटी के चेयरमैन सूफी एम.के. चिश्ती ने दावा किया कि मोदी के दौर में गुजरात में मुसलमानों की हमाजहत तरक्की हुई है, लेकिन जब उनसे माबाद गोधरा फसादात के ताल्लुक से पूछा गया तो चिश्ती साहब ने मुल्क भर के फसादात की फहरिस्त पेश कर दी और मोदी पर उंगली उठाने वालों पर ही सवाल खड़ा कर दिया। भारत के इतिहास में 11,000 दंगे हुए, मेरठ का, मलियाना का, भागलपुर का, जमशेदपुर का, अभी आसाम में जो हुआ, तो दंगों का इतिहास पूरे आजादी से लेकर अभी तक रहा है और ज्यादातर वो सारे दंगे कांग्रेस रूलिंग स्टेट्स में ही हुए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम ईमानदारी से सवाल नहीं कर रहे हैं, हम हिसाब सिर्फ एक ही से मांग रहे हैं, हजारों को माफ कर रहे हैं। मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन के सिलसिले में पूछे गए सवाल पर एम.के. चिश्ती ने कहा कि नरेंद्र मोदी मजहब की बुनियाद पर रिजर्वेशन देने के कायल नहीं हैं। सेमिनार में बेंगलुरु के सूफी सलीम हजारवी मोदी के ताल्लुक से काफी पुरुम्मीद नजर आए। गुजरात में रिलीजियस बेस पे रिजर्वेशन नहीं है, फिर भी वहां 9% गवर्नमेंट जॉब्स है, वहां एजुकेशन में अपलिफ्टमेंट है, वहां रोजगारी बेहतर है, वहां पर कैपिटल इनकम सबसे हाईएस्ट है। अटल बिहारी वाजपेयी साहब के रास्ते पे चलते हुए इंशाअल्लाह मोदी भी मुसलमानों को यहाँ एक सेफ नगरी बताएंगे। बेंगलुरु के बाद बीजापुर, गुलबर्गा, बीदर, हुबली और चंद दीगर इलाकों में नमो ब्रिगेड तंजीम मोदी और मुसलमान के उन्वान पर सेमिनार का इनेकाद करने जा रही है। इन सेमिनारों का अहम मकसद आने वाले लोकसभा इंतखाबात के पेश नजर वजीर आजम के ओहदे के दावेदार नरेंद्र मोदी के हक में राह हमवार करना है। ईटीवी न्यूज, बेंगलुरु। इशतजहां फर्जी एनकाउंटर केस में सीबीआई दिल्ली खुसूसी अदालत में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करेगी। सीबीआई जराये के मुताबिक इस सिलसिले में 10 दिन के अंदर चार्जशीट दाखिल की जा सकती है। जांच हुक्काम का कहना है कि इस सिलसिले में आईबी हुकाम से कानूनी राय तलब की गई थी, लेकिन उनकी जानिब से कोई खातिरख्वाह जवाब मौसूल नहीं हुआ। मुतालिका अदालत को भी इस बात से वाकिफ कर दिया गया है। वाज़ेह है कि इशतजहां फर्जी एनकाउंटर केस में सीबीआई की जानिब से दिसंबर 2013 में जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की गई थी, उसमें गुजरात के वजीर आला नरेंद्र मोदी के करीबी अमित शाह को क्लीन चिट दी गई है, जबकि आईपीएस अफसरान जेल में कैद हैं। इंडियन नेशनल लीग ने लोकसभा की तमाम सीटों पर इंतखाबात लड़ने का ऐलान किया है। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में लीग के कौमी सदर ने कहा कि पार्टी इंतखाबात लड़ने के लिए तैयार है और उनका एजेंडा है तमाम तबकात को बराबर की हिस्सेदारी। इंडियन मुस्लिम लीग से टूटकर वजूद में आई इंडियन नेशनल लीग भी शुमाली हिंद की सियासत में किस्मत आजमाई करने दिल्ली पहुंच गई है। केरला, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश के असेंबली इंतखाबात में महदूद कामयाबी के बाद पार्टी का हौसला बुलंद है। दिल्ली में पार्टी ने मुल्क की तमाम लोकसभा सीटों पर इंतखाब लड़ने का ऐलान किया है। हमारा एजेंडा है इस मुल्क में तमाम महरूम तबका, दलित, पिछड़े, मुस्लिम्स, दीगर क्रिश्चियंस, ट्राइबल्स, सबको लेकर इस मुल्क की सियासत को खड़ा किया जाए। पार्टी के लीडरों ने मुल्क की सियासत में पसमानदा और महरूम तबकात की हिस्सेदारी पर जोर दिया। पार्टी लीडरान ने यकसा मौक़े कमीशन, अदलिया के निज़ाम में इस्लाहात और तमाम तबकात की हिस्सेदारी को अपना एजेंडा करार दिया है। इस पार्टी की अगर सत्ता आती है या इस ताकत में आते हैं तो हम इस देश में भागीदारी का फार्मूला लागू करूंगा, जिसमें इस देश के हर तबके को, हर समुदाय को बराबर का हिस्सा उसकी जनसंख्या के आधार पर उसको भागीदारी मिलेगी। काम और कर्तव्य में, अधिकार में सभी में मिलेगी। जनूबी हिंद में कामयाबी के बाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, यूडीएफ असम और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के अलावा इंडियन मुस्लिम लीग जैसी पार्टियों ने दिल्ली समेत शुमाली हिंद में अपने दफातर कायम किए हैं। अब देखना यह है कि मुसलमानों का इन्हें कितना ताउन मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज।
دہلی کے اوکھلا نگر میں مسلم نوجوانوں نے مسلم علاقوں کے بارے میں منفی سوچ کے خلاف ایک مہم چلائی ہے۔ یہ نوجوان مغربی اور مشرقی تہذیب کے اشتراک سے ملک کی ترقی کے لیے سرگرم رول ادا کرنا چاہتے ہیں۔ جامعہ نگر کے مسلم اکثریتی علاقے کو دہلی میں نیچی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ علاقے کے تعلق سے شاید اسی منفی سوچ کا نتیجہ ہے کہ علاقے کے عوام کو بینک قرض نہیں دیتا ہے۔ اسی طرح ٹیلی کمپنیوں نے اپنے انٹرنیٹ اسکیموں سے لے کر دوسری اسکیموں کو اس علاقے کے لیے بند کر رکھا ہے۔ مسلم نوجوانوں نے اس منفی سوچ کو ختم کرنے کے لیے آواز بلند کرتے ہوئے انڈین یوتھ فورم قائم کیا ہے۔ ابو الفضل انکلیو میں ایک تقریب کے دوران نوجوانوں نے کہا کہ اب پرانے خیالات کے بجائے مغرب اور مشرق کی ملی جلی تہذیب کے ساتھ ملک کو آگے لے جانا چاہتے ہیں۔ ہم جو انیشیٹو لیے ہیں، ہم اوکھلا میں ہم بہت دن سے رہ رہے ہیں، تو ہم نے یہ سوچا کہ آخر اوکھلا کا پرابلم کیا ہے۔ لوگوں کے من میں اوکھلا کے بارے میں غلط نگیٹو میسج ہے۔ اگر یوتھ کو لے کر نگیٹو ہے تو یوتھ ہی اس نگیٹیوٹی کو ختم کر سکتا ہے۔ دیٹس وائی ہم جتنے بھی اچھے لوگ سوچنے والے کچھ یوتھ تھے وہ لوگ مل کر یہ انیشیٹو لیے کہ ہم یوتھ پہ کام کریں اور یوتھ ہی اس سوسائٹی کو چینج کر سکتا ہے، کیونکہ آج پورے ورلڈ میں انڈیا میں خاص کر انڈیا میں 41% یوتھ ہے اور یوتھ کو آگے آنا پڑے گا۔ جامعہ کے اس علاقے میں بٹلہ ہاؤس انکاؤنٹر سمیت 2 انکاؤنٹر ہو چکے ہیں جن پر علاقے کے لوگوں کی جانب سے سوالات اٹھائے گئے ہیں، جس کی وجہ سے پولیس اور عوام کے درمیان دوری کسی سے چھپی نہیں ہے۔ اس کے باوجود جامعہ نگر کی پولیس علاقے کے تعلق سے منفی سوچ کی مخالف ہے۔ کئی پروگرام ہے، جیسے ہم بھی یہ جو انڈین یوتھ فورم کے پروگرام ہیں اس میں سے 2 پروگرام ہم نے اپنے پولیس اسٹیشن میں کروا رہے ہیں، جیسے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے، اسکل ڈیولپمنٹ اور ووکیشنل کورسز، یہ ہمارے پولیس اسٹیشن میں ہی چل رہے ہیں۔ تو میں ان سے بھی کہوں گا مل کے ساتھ ہم یہاں کے یوتھ کو اور زیادہ سے زیادہ۔ اوکھلا میں مسلمانوں کی پڑھی لکھی آبادی جامعہ ملیہ اسلامیہ کے ارد گرد آباد ہے، جبکہ بیشتر مسلم تنظیموں کے دفاتر بھی اسی علاقے میں ہیں۔ قومی اور بین الاقوامی سطح پر مسلم مسائل پر اس علاقے سے آواز اٹھتی رہی ہے، تاہم یہ پہلا موقع ہے جب مسلم نوجوانوں نے علاقے کے تعلق سے منفی رویہ اور سوچ کے خلاف آواز اٹھائی ہے۔ ETV نیوز، دہلی۔ انڈیا اسلامک کلچرل سینٹر کے نومنتخب ذمہ داروں نے اپنا عہدہ سنبھال لیا ہے۔ حلف برداری تقریب میں آئندہ 5 سالوں کے لیے منتخب ذمہ داروں کا استقبال کیا گیا، جنہوں نے پوری ایمانداری سے اپنے فرائض نبھانے کا یقین دلایا۔ کامیابی جو ہے وہ تمام ان ممبران کی ہے جنہوں نے انڈیا اسلامک کلچر سینٹر کو سپورٹ کیا اور اس کے ساتھ جڑے رہے، اور ہمیشہ انہوں نے اس بات کی کوشش کی کہ انڈیا اسلامک کلچر سینٹر جو ہے وہ دن بدن عروج پر پہنچے۔ تو میں اس کو اپنی جیت نہیں مانتا، میں تمام ممبران کی جیت مانتا ہوں۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ اللہ کا شکر ہے 10 سال کے اندر انڈیا اسلامک کلچر سینٹر کے اندر اس کا کریڈٹ میں اکیلا نہیں لیتا، میں نے اور میری ٹیم نے مل کے جو کام کیا اللہ کا شکر ہے، آپ سب جانتے ہیں، ان کاموں سے سب واقف ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگلے 5 سال کے اندر بھی جو ہم نے اب تک کیا ہے اس سے بہتر کام کر کے دکھائیں۔ خاص بات میں فی الحال لیں گے چھوٹا سا بریک، کچھ اور خبروں کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اپنائیے میلا اسکن کریم، اس کو صرف رات میں استعمال کرنے سے آپ کو ملے فیس پرابلم سے آزادی۔ اب فیس پرابلم کو کہیے بائے بائے۔ ایلی فارماسیوٹیکلز دوارا۔ وہ صبح کبھی تو آئے گی، غریبوں کو، امیر لوگوں کو اور جان کے لوگوں کو مفت دوائی۔ کار ایکسیڈنٹ میں کار میں بیٹھنے والا ویکتی انشورنس کا حقدار بن جاتا ہے، تو ہم کیوں نہ اسپتال کے ہر بیڈ کا انشورنس کریں، اس بیڈ پر جو آیا وہ انشورنس کا حقدار بن جائے۔ آپ نے سنی نیتاؤں کی آواز، ہم سننا چاہتے ہیں آپ کی آواز۔ سواستھیہ سیوائیں سدھارنے کے لیے آج ہی اپنے آئیڈیاز بھیجیں۔ چینج انڈیا، این ایجنڈا فار دا نیکسٹ PM۔ مظفر نگر فساد کا اثر صرف لوگوں کی جان و مال پر ہی نہیں پڑا، بلکہ اس علاقے کی کاشتکاری بھی کافی متاثر ہوئی ہے۔ خاص طور سے گنا کسانوں کا بڑے پیمانے پر نقصان ہوا ہے۔ مغربی اتر پردیش کے زیادہ تر کاشتکار نقدی فصل گنے کی کاشتکاری کرتے ہیں۔
इस इलाके की जमीन गन्ने की काश्तकारी के लिए जरखेज है, इसलिए किसान अपनी पैदावार के वाजिब दाम के लिए साल भर इंतजार करता है। लेकिन इस साल मुजफ्फरनगर फसादात ने न सिर्फ आम जिंदगी को मुतासिर किया बल्कि गन्ना काश्तकारों को भी काफी नुकसान पहुंचाया है। गन्ना तो 1/3 गन्ना मान के चलो, ये बहुत फसल डाउन हो, बहुत ज्यादा डाउन हो। तो वहाँ गरीब आदमी जो मतलब सादे आदमी अपने कर रहे थे, मंडल के बाजू तो गई नहीं। फसाद के बाद चीनी मिलों के चलने को लेकर सरकारी लापरवाही का असर चीनी मिलों से ज्यादा गन्ना काश्तकारों पर पड़ा। फसाद के बाद देर से शुरू हुई गन्ने की कटाई का असर चीनी मिल और कोल्हू पर नजर आ रहा है। देर से गन्ना पहुंचने पर जहां चीनी मिलें काश्तकारों को वाजिब दाम अदा करने में अपनी मजबूरी जाहिर कर रही हैं, वहीं कोल्हू में तैयार हो रहे गुड़ को मंडी में मुनासिब दाम मिलने का इंतजार है। अरे आज परेशान हो, झगड़े की वजह तो लेट होने से फर्क पड़ा। हाँ जी, क्या फर्क पड़ा है? फर्क हर चीज पड़ रहा है। गो मंडी जो आड़ती हो जो पैसे दे रहा, आड़ चरखी वालों को, गरीब आदमियों को आड़ पैसा मिल रहा, और अपना करना खाने को जो मतलब लगे हुए थे वो करना खाना सही नहीं रहा, क्यों जब पैसा नहीं मिल रहा तो करना खाना खत्म हो रहा, हर चीज को हिसाब पड़ रहा। मगरबी उत्तर प्रदेश का बड़ा इलाका गन्ने की काश्तकारी से मंसूब है। कई सारी यहाँ पे चीनी मिलें हैं, कोल्हू लगते हैं जिसकी वजह से गुड़ बनता है, और दुनिया भर में और बैरूनी ममालिक में भी यहाँ की चीनी बड़ी मशहूर है। लेकिन 4 महीना पहले हुए इस फसाद ने यहाँ के लोगों को दूर किया तो काश्तकारी को भी बहुत नुकसान पहुंचाया है। इस बार जहाँ चीनी मिलें बहुत देर से चली, वहीं कोल्हू में भी गन्ना बहुत देर से पहुंचा है। ये जो एक दूसरे से मिलजुल कर यहाँ की काश्तकारी और कारोबार चल रहा था, वो धीरे धीरे पटरी पर लौट तो रहा है, लेकिन इसको लौटने में थोड़ा और वक्त लगेगा, जिस तरह से फसाद ने इस पूरे माहौल को बर्बाद किया था। कैमरा पर्सन वसीम अहमद के साथ तंजीर अंसार, ETV न्यूज, मुजफ्फरनगर। रुक करेंगे मगरबी बंगाल का, जहां 10% आबादी वाले अजला में उर्दू को दूसरी सरकारी जबान का दर्जा दिया गया है, लेकिन अमली तौर पर इसका निफाज नहीं हो पा रहा है। मगरबी बंगाल अक़लियती कमीशन ने इस मामले को उठाया है और वज़ीर आला को सिफारिश रवाना करने का फैसला किया है। मगरबी बंगाल में उर्दू बोलने वालों की कसीर आबादी है, लेकिन उर्दू जबान को सरकारी सरपरस्ती न मिलने की वजह से रियासत में न सिर्फ उर्दू स्कूलों की कमी बल्कि उर्दू दां तबका सहूलतें हासिल करने में नाकाम था। रियासत में उर्दू को सरकारी जबान का दर्जा दिए जाने के लिए देरीना मुतालबे को ममता हुकूमत ने तस्लीम कर लिया और कोलकाता समेत 10% उर्दू आबादी वाले अजला में उर्दू को सरकारी जबान का दर्जा देने का ऐलान किया। लेकिन हुकूमत का ये ऐलान महज कागजी खानापुरी साबित हो रहा है। 1 साल गुजर जाने के बावजूद भी अमले आवरी एक अहम मसला है। रियासती अक़लियती कमीशन के चेयरमैन ने उर्दू को सरकारी दर्जा हासिल होने के बावजूद मुकाबला जाती इम्तहानात उर्दू में लिखने की इजाजत न मिलने पर हैरत का इजहार किया। जे हम लोग का तो उर्दू तो गवर्नमेंट तो डिक्लेयर कर दिया, लेकिन अभी तक तो लागू नहीं हुआ, अभी तो कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। हमारा चीफ मिनिस्टर तो उसका पेड में तो उर्दू का ये लिख दिया, आगे उर्दू नहीं था, उसका जो पेड लेटर हेड है, लेटर हेड में उर्दू का लिख दिया। तो लेकिन 10% जहाँ जहाँ उर्दू भाषी लोग रहते, वो लोग का जो वो जो सेकंड लैंग्वेज हम लोग का करने के लिए, वो तो हम लोग का इम्तिहान में देता है। अभी तक PSC में अभी तक नहीं लागू नहीं हुआ। कमीशन ने इस मामले को संजीदगी से लिया और उर्दू वालों के साथ हो रहे इम्तियाज के लिए सरकारी अफसरान को जिम्मेदार बताया। इम्प्लीमेंटेशन के बारे में 10% जो बोला जाए हम लोग का उसको सेकंड लैंग्वेज का दर्जा देगा, तो सेकंड लैंग्वेज का तो दर्जा देने के लिए तो थोड़ा उसका गवर्नमेंट को भी थोड़ा ये करना चाहते, तो हमारा करने चाहते, लेकिन वो लोग तो जो हमारा धरिए MOS है उसका तो नोट देना चाहिए, इतना अभी उसको बैठा देगा का गुड इंटेंशन उसका है, लेकिन उसको जो इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए जो आधिकारिक है, जो ऑफिसर है, वो लोग ठीक से उसका पास फाइल पुटअप नहीं करते। अक़लियती कमीशन के मुताबिक उर्दू पर अमले आवरी के ताल्लुक से जल्द ही हुकूमत को सिफारिशात रवाना की जाएगी। ETV न्यूज, कोलकाता। झारखंड अक़लियती कमीशन के अरकान सरकारी सहूलियात न मिलने से नाराज हैं। इस सिलसिले में कमीशन के अरकान ने वजीर बराए अक़लियती फलाह हाजी हुसैन अंसारी से सहूलियात की फराहमी का मुतालबा किया है। बसूरत दीगर कमीशन की रुकनियत से दस्तबरदार होने का इंतबाह दिया है। वज़ीर के कमीशन के चेयरमैन और नायब चेयरमैन को तनख्वाह के अलावा दीगर सहूलियात भी फराहम की जाती हैं। बिहार में
बिहार में आवास से लेकर मतलब मानदेय से लेकर गाड़ी से लेकर तमाम सुविधाएं दी जाती है और उन तमाम प्रपोजल को हम लोगों ने बाजाबते यहाँ पे माननीय अल्पसंख्यक मंत्री को भी दिया है। तनख्वाह कहाँ मिलती है उन लोगों को, सिर्फ चेयरमैन भाई साहब को मिलती है, बाकी स्टाफ को मिलता है। प्रपोजल बढ़ाया गया, कोशिश करेंगे दिलवाया जाएगा उसको। किसी को भी आज तक मानदेय नहीं मिला है। अब यहाँ बिहार के तजर्बा पेपर समेत क्या है, फाइल बढ़ाए हुए हैं, प्रयास किया जाएगा, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह हम लोग। मारूफ मौसीकार और नगमा निगार रविंदर जैन को लखनऊ में इस्तकबालिया पेश किया गया। मशहूर शायरा और अदीबा मधुरिमा सिंह की रिहाइशगाह पर मुनक्किदा इस तकरीब में लखनऊ के शायरों, कवियों और मूसीकी से जुड़े लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर साजो आवाज की दुनिया के उभरते फनकारों ने रविंदर जैन के सामने अपने फन का मुजाहरा भी किया। सारे कमरे गिरती गिरती दीवारें, जिसको पंछी चुरा लिया मैंने, तुम्हारी आँख का आंसू चुरा लिया मैंने, तुम्हारा राज तुम्हीं से छुपा लिया मैंने, आंध्र प्रदेश कानून साज असेंबली में कल तेलंगाना बिल के मसौदे पर बहस हुई। अरकान इलाकाई बुनियादों पर मुनक़सिम दिखाई दिए। सीमांध्रा से ताल्लुक रखने वाले अरकान ने निजाम हुक्मरान के खिलाफ तबसरा किया, जबकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी ने कहा कि मुल्क के पहले वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू ने निजाम दौरे हुकूमत को बेहतरीन दौर से ताबीर किया था। अकबर अवैसी ने कहा कि जब हिंद चीन जंग चल रही थी तो तब निजाम उस्मान अली खान बहादुर ने हिंदुस्तानी फौज को 120 किलो सोना बतौर तोहफा पेश किया था। अकबरुद्दीन अवैसी ने पुराने जख्मों को न कुरेदने की अपील की। सबसे बड़ी वजह है तेलंगाना की तश्कील के लिए या तेलंगाना की आवाज को उठाने के लिए, चाहे वो ज़राअत हो, पानी हो, मुलाजिमत हो या फिर कोई और हो। अगर नाइंसाफी और मजालिम वजह है एक रियासत की तश्कील के लिए, तो यह भी एक हकीकत है और इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता। तो मैं जरूर कहूंगा कि चाहे वो आंध्रा हो, चाहे वो रायलसीमा हो या फिर तेलंगाना हो, आजाद हिंदुस्तान की तारीख में इन तीनों हिस्सों में या रीजन्स में अगर सबसे ज्यादा नाइंसाफी अगर किसी के साथ हुई तो मैं कहूंगा कि मुसलमान के साथ हुई। और यह बात मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूं कि यहां खड़े होकर लफाजी करूं या अपने अल्फाज या अपने खिताब के जरिए अपने जज्बात को आपके सामने रखूं, बल्कि यह हकीकत है कि जब हैदराबाद का मर्जर हुआ और आंध्र प्रदेश वजूद में आया, या हैदराबाद में उर्दू जबान थी उस वक्त, there were 4 languages, I would say 5 languages then. Telugu was there, Kannada was there, Marathi was there, Persian was there, Hindi was there, Urdu was also there. All these languages. And I would also like to quote what Jawaharlal Nehru had said then. He had said that if we want to really see a mini India, we can see it in the state of Hyderabad. और अब बात करेंगे मालेगांव किताब मेले की। मालेगांव सोसाइटी ऑफ एजुकेशन मुंबई और पासबान अदब मुंबई के इश्तराक से कौमी कौंसिल बराए फरोग़ उर्दू जबान का 10 रोजा उर्दू किताब मेला इख्तिताम पजीर हुआ। कौमी कौंसिल के तहत इस किताब मेले में 76 लाख रुपये से जायद की किताबें फरोख्त हुई, जो कि एक रिकॉर्ड है। कौमी कौंसिल बराए फरोग़ उर्दू जबान के माली ताउन से मालेगांव में 10 रोजा उर्दू किताब मेले का इनेकाद अमल में आया। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों के पब्लिशरों ने किताब मेले में शिरकत की। किताबों की खरीदारी को लेकर लोगों में काफी जोशो खरोश का माहौल देखा गया।
उम्मीद से ज्यादा किताबें फरोख्त होने पर पब्लिशरों ने भी इत्मीनान का इजहार किया। किताब मेले में तो आवाम का बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और हमारे यहाँ पर बच्चों के अदब का खजाना है और तलबा और तालबात जो आ रहे हैं बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं और पसंद कर रहे हैं, किताबें खरीद रहे हैं, खरीदने का जो रुझान है जो यहाँ पर उनको मिला है बहुत ही शानदार शुरुआत है इसकी किताब मेले की। कितने टाइटल्स आपके पब्लिकेशन ने शाये किए हैं? और रहमानी पब्लिकेशन मालेगांव ने अब तक खास बच्चों के लिए 850 टाइटल शाये किए हैं जो कि हर मौजू पर मुश्तमिल है। किताबों की खरीदारी में तलबा की एक बड़ी तादाद पेश नजर आई। अपनी पसंद की किताबें पाकर तलबा और असातिज़ा काफी खुश थे। मारूफ इल्मी और अदबी शख्सियत मौलाना गुलाम मोहम्मद वस्तानवी ने अपने इदारे के लिए लाखों रुपये की किताबें खरीदी। माशाल्लाह पहली मरतबा मेला हो रहा है और ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारे गांव के लोगों को किताबों के मुताले से दिलचस्पी है। हर स्टॉल पर लोग किताबें खरीद रहे हैं। उम्मीद है कि इस तरह से किताबों से दिलचस्पी का ये मुजाहरा जारी रहेगा कि बच्चे जो है आजकल ज्यादातर जो है टीवी और इंटरनेट कंप्यूटर से रिलेटेड हो चुके थे, लेकिन उर्दू किताब मेला जब यहाँ पर आया तो बच्चों के अंदर थोड़ा सा रीडिंग का शौक, पढ़ने का जज्बा जो है वो पैदा होगा। ये देखकर ये माहौल, क्योंकि अभी तकरीबन 10 साल पहले से जो है अब तक यहाँ पर रीडिंग का शौक काफी हद तक स्टूडेंट्स के अंदर खत्म हो चुका है। किताब मेले में अदबी और सकाफती प्रोग्राम भी हुए। मेले की इख्तितामी तकरीब में कौमी कौंसिल की जानिब से कौंसिल के डायरेक्टर ख्वाजा मोहम्मद इकरामुद्दीन, प्रोफेसर अतीकुल्ला, प्रोफेसर इंतखाब हमीद मेले में शरीक हुए और अहलियान मालेगांव का शुक्रिया अदा किया। ईटीवी न्यूज मालेगांव। तो यहां पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। What? You want me to wait for another 40 minutes? I don't believe you. No, forget it. बॉयफ्रेंड वेट करा रहा है। शी मैन, आई टेल यू। अब आप 40 मिनट्स के लिए क्या करेंगी? No idea. गेट आइडिया। आइडिया इंटरनेट अपनाएं, चैट, अपलोड, सर्च और सर्फ करें अब 90% कम दर पे। देखिए ईटीवी उर्दू सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। खास बात में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। खान अब्दुल गफ्फार खान तारीख का वो नाम जो कभी बादशाह खान के नाम से जाना गया तो कभी फख्रे अफगान कहलाया, तो दुनिया ने उन्हें सरहदी गांधी का नाम भी दिया। जी हां, हम याद कर रहे हैं सरहदी गांधी को, खान अब्दुल गफ्फार खान को, जिनकी कल बरसी मनाई गई। लेकिन अफसोस का मकाम है कि जिस सरहदी गांधी को हिंदुस्तान ने भारत रत्न जैसे गिराकद्र एजाज से नवाजा, उसी भारत में गांधी के पैरोकार सरहदी गांधी को फरामोश कर गए। 98 बरस की उम्र में 35 साल जेल में गुजारने वाले सरहदी गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान सन 1890 में पाकिस्तान के पेशावर में पैदा हुए। इब्तिदाई तालीम मिशन स्कूल पेशावर में हासिल की, आला तालीम अलीगढ़ में पाई और अंग्रेज फौज में मुलाजिम हो गए, लेकिन ज्यादा दिन अंग्रेजी फौज में न रह सके। सरकारी मुलाजमत छोड़ दी और मुल्क की खिदमत में मसरूफ हो गए। 1919 में मार्शल लॉ में गिरफ्तार हुए। सरहदी गांधी का सबसे बड़ा कारनामा उनकी तहरीक खुदाई खिदमतगार थी। गांधी जी की तहरीक से मुतासिर होकर 1930 में सत्याग्रह तहरीक में शमूलियत के सबब खान अब्दुल गफ्फार खान को जेल भेज दिया गया। जेल में कैदोबंद की सोबतों के दौरान सरहदी गांधी ने जेल में दीनी तालीम का सिलसिला शुरू करवाया। महात्मा गांधी के इस मुखलिस साथी ने अदम तशद्दुद की राह अपनाकर अपने अमल से दुनिया को अमन का पैगाम दिया। वो हमेशा गांधी जी के नजरियात के हामी रहे। सन 1987 में खान अब्दुल गफ्फार खान को हिंदुस्तान के सबसे बावकार एजाज भारत रत्न से नवाजा गया। आलमी अमन की कोशिशों की बुनियाद पर उन्हें 2 मरतबा नोबल इनाम का मुस्तहिक करार दिया गया।
20 जनवरी 1988 को अमन का यह पैगंबर अबदी नींद सो गया। खान अब्दुल गफ्फार खान की वसीयत के मुताबिक उन्हें